Now we move on to a very important topic, that is solenoid as an equivalent bar magnet. Solenoid as an equivalent bar magnet. Let us assume a small and thin solenoid whose length is 12 and radius is a. This solenoid has n turns per unit length and each turn contains current I. Let us assume C be the center of the solenoid and at a distance x from the center there is a very thin current loop whose thickness is dx. The thickness of the loop is dx. Also assume an observation point lies on the axis of solenoid which is at a distance r from the center and r minus x from this current loop. Since each turn has current I and turn per unit length are n, so number of turns in this loop will be what? N into dx. Because thickness is dx, so n into dx will be the number of current turns and current contained by each turn in the solenoid. Current in loop I dash is what? N into dx, any total number of turns in the loop multiplied by current in each turn. So I dash will be n dx into I. This is the current. Now magnetic field, because of this current loop, magnetic field at the point P, हमने पढ़ा था magnetic field at the axis of a circular current loop in chapter 4. The formula of this magnetic field is B equals to mu 0 upon 2 I A square. I is the current, A is the radius of the loop, divided by a square plus r square. R is the distance of the observation point from the center, raised to the power 3 by 2. ये हमारा reference formula. Let us imply this formula here. Since we have assumed a very small loop, so magnetic field will be small, that we take with dp mu 0 upon 2 as it is. Since current here is not I itself, it is n dx into I. This is the current in the loop. And radius of the loop will be same as that of solenoid. So n dx I into a square will be the upper factor. Since a be the radius of loop, but distance of observation point is not r here, it is rather r minus x. So we will take r minus x ka square raised to the power 3 by 2. Since we have assumed that solenoid is small and thin, so r will be much larger than a. ये जो r की distance है ये इस a से बहुत बड़ी होगी because it is a thin solenoid. Also it is a small solenoid, so length L, or you can say the x is again very small. So we can neglect both a and x from the denominator. Denominator से मैं a और x दोनों को neglect कर सकता हूँ. तो neglecting both, we can write db equals to mu 0 upon 2 n dx I a square divided by r cube. क्योंकि यहां से a भी खत्म हो जाएगा, x भी खत्म हो जाएगा, r की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 by 2 यानी r क्यूब यहां से बचेगा. और मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ इस इक्वेशन में 2 पाई से मल्टीप्लाई किया, तो mu 0 upon 2 into 2 pi upon 2 pi I a square, मैंने पहले लिख लिया I को, a square को भी, और n dx बाद में लिखा डिवाइडेड बाय r क्यूब. तो दिस वे we have seen that pi and a square becomes a area of the cross section of the solenoid. Solenoid का area of cross section बन गया a. तो I can write db equals to mu 0 upon 4 pi, 2 pi multiplied by 2 becomes 4 pi, 2 as it is. यहां पर सिर्फ I बचेगा, pi a square becomes a, तो a into I और n dx divided by r cube. This is a small magnetic field placed at the point P because of this small current loop. But if we take the magnetic field of the whole length of solenoid की whole length की वजह से अगर मैं magnetic field लेूं तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस magnetic field को. तो magnetic field B will be the integration of 0 to 2L, यानी 0 लेंथ से लेके 2L टोटल लेंथ तक मुझे इंटीग्रेट करना है ऑफ dv. और यहां पर mu 0.4 pi 2ai n dx by r क्यूब, जो चीजें कांस्टेंट है मैंने एक तरफ निकाल लिया है. अगर मैं देखूं तो ये सारा फैक्टर कांस्टेंट है, इट विल बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, सो ओनली dx विल बी इंटीग्रेटेड, और इंटीग्रेशन ऑफ dx विल बी 2l minus 0.
यानी dx का इंटीग्रेशन विल बी 2l। तो यहां पर मैंने इसको इंटीग्रेट करके लिखा 2l, बट मुझे पता है n इंटू 2l, 2l is the length or n is the number of turns per unit length. So n into 2l be the total turns in the solenoid, n into 2l be total turns of solenoid। तो n into 2l को मैं यहां पर रख सकता हूं कैपिटल N। तो b इक्वल्स टू म्यू 0.4 पाई इंटू 2 NIA बाई आर क्यूब। और हमने पढ़ा है NIA इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए करंट लूप। किसी भी करंट लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट NIA होता है। तो आई कैन राइट b इक्वल्स टू म्यू 0.4 पाई 2m अपॉन आर क्यूब। अगर आप देखें 2m अपॉन आर क्यूब, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ the magnetic field at an axial point due to a bar magnet. This equation resembles the magnetic field is same as the magnetic field of a bar magnet at an axial point. So we can say solenoid is an equivalent bar magnet. Solenoid behaves like a bar magnet. Moreover, if we draw the magnetic field pattern of both solenoid and bar magnet, it comes same. So that's all. Now, orbital magnetic moment of a revolving electron और बोहर मैग्नेटोन हमारा अगला टॉपिक है। बोहर मैग्नेटोन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। हमने मान लिया एक इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज -e और मास m है, किसी r रेडियस की ऑर्बिट में वेलोसिटी v से एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज एक करंट लूप, क्योंकि घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एक मूविंग चार्ज, और हमें पता है मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस करंट, क्योंकि ये एक लूप में घूम रहा है। तो ऑर्बिट ऑफ दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कैन बी ट्रीटेड एज ए करंट लूप एंड हेंस हमें पता है करंट लूप इज ए मैग्नेटिक डाइपोल, सो इट कैन बी टेकन एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल का एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इज व्हाट m इंटू आई इंटू ए करंट टाइम्स ऑफ एरिया होता है। बट कितना करंट प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रॉन? करंट प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रॉन इन वन कंप्लीट राउंड इज I इक्वल टू E अपॉन टी। E इज द चार्ज एंड T इज द टाइम। टाइम कितना लेता है इलेक्ट्रॉन? यहां से अपने ग्राउंड पूरा करता है v वेलोसिटी पे, तो 2 पाई r का डिस्टेंस और वे वेलोसिटी, तो मैं कह सकता हूं टाइम इज 2 पाई r अपॉन v एंड हेंस I can say current produced by the electron in one complete round is EV upon 2 pi r। एक इलेक्ट्रॉन एक राउंड में EV अपॉन 2 pi r का करंट प्रोड्यूस करता है। साइड बाय साइड एरिया ऑफ द ऑर्बिट इज व्हाट पाई r स्क्वायर, क्योंकि पाई r स्क्वायर होगा एरिया ऑफ ऑर्बिट। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन व्हाट I इंटू ए, यानी EV अपॉन 2 pi r और इंटू पाई r स्क्वायर। पाई से पाई और एक r की पावर से r कैंसिल हुआ, तो m कम्स मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कम्स EVR अपॉन 2। EVR अपॉन 2 ये हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन आया। डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से अगर मैं अपनी कर्लिंग फिंगर्स को डायरेक्शन ऑफ करंट में रखूं तो स्ट्रेच थंब देता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, जो प्रेजेंट केस में आती है क्रॉस हेड की फॉर्म में। अगर ये करंट ऐसे होता तो डॉट हेड हो जाता, बट इस टाइम क्योंकि मेरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है, हेंस करंट विल बी क्लॉकवाइज। हमें पता है जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन घूमता करंट उसके अपोजिट होता है। तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन आया EVR अपॉन 2 क्रॉस हेड आया, ये हमने राइट हैंड थंब रूल से निकाला। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की। बोहर थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन से हमने पढ़ा है, बोहर थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन कहती है कि इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h इज प्लैंक कांस्टेंट हियर। तो अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हुज एंगुलर मोमेंटम L is equal to nh upon 2 pi। n is the number of orbit, h is the Planck constant in 2 pi, you know। बट हमें पता है एंगुलर मोमेंटम होता है लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और लीनियर मोमेंटम होता है mv। तो आई कैन सिंपली राइट mvr, इट इज द एंगुलर मोमेंटम, mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अगर मैं इक्वेशन थर्ड से देखूं तो ev की वैल्यू जो मेरे पास आ रही थी या vr की वैल्यू जो आ रही थी वो m
2m अपॉन ई आता है। तो अगर मैं यहां पर वी आर की वैल्यू रिप्लेस कर दूं m इंटू 2m अपॉन ई फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो NH अपॉन 2 पाई और m मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द परमिटेड ऑर्बिट विल बी n इंटू EH अपॉन 4 पाई m। n यहां पर नंबर ऑफ ऑर्बिट है। अगर मैं नंबर ऑफ ऑर्बिट को ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट मानता हूं n इक्वल टू 1 दैट वी कॉल ग्राउंड स्टेट, देन हम इस मैग्नेटिक मोमेंट को एक स्पेशल नेम देते हैं दैट वी कॉल म्यू बी। तो अगर ग्राउंड स्टेट में हम बात करें तो m इज कॉल्ड म्यू बी एंड EH अपॉन 4 पाई m, यानी म्यू बी इक्वल टू EH अपॉन 4 पाई m। दिस इज कॉल्ड बोर मैग्नेटॉन। तो बोर मैग्नेटॉन इज नथिंग but orbital magnetic moment of a revolving electron in ground state। अगर आपसे कोई पूछता है what is the definition of orbital Bohr magneton, तो your answer is very simple that orbital magnetic moment of a revolving electron in ground state is called Bohr magneton। Bohr magneton एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये एक ग्राउंड स्टेट का कांस्टेंट है। E की वैल्यू हमें पता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, H 6.6 इंटू 10 इज टू पावर माइनस 34, 4 पाई की वैल्यू 3.14 और m की वैल्यू हमें पता है m की वैल्यू है 9.1 इंटू 10 की पावर 10 raised to the power minus 31। So this way solving all we can have the numerical value mu b equals to 9.27 into 10 raised to the power minus 24 एम्पियर मीटर स्क्वायर। क्योंकि ये डायपोल मोमेंट है तो यूनिट वही आएगी जो एम्पियर मीटर स्क्वायर यानी डायपोल मोमेंट की होती है। तो वंस अगेन व्हाट इज बोर मैग्नेटिक मोमेंट? बोर मैग्नेटॉन इज द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in ground state. Its numerical value is 9.27 into 10 raised to the power minus 24 ampere meter square and its direction is given by RHTR and is always directed from south pole to north pole of the current loop. That's all. Thank you for watching.